Okay, welcome back to our channel Science Vision by Anil Kamboj. So today's topic is derivation of equation of motion with the help of graphs. So आज हम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस की डेरिवेशन करने जा रहे हैं. पहले देख लें तीनों इक्वेशन कौन कौन सी थी. फर्स्ट इक्वेशन थी v minus u is equal to at, or you can say v is equal to u plus at. सेकेंड इक्वेशन थी s is equal to ut plus half a t square, where u is the initial acceleration, a is the u is the initial speed, a is the acceleration, and t is the time. थर्ड इक्वेशन थी v square minus u square is equal to 2a s. तो ये तीनों डेरिवेशन now we'll do with the help of graph. So firstly we'll draw a graph for it. So in the graph we'll take the position time graph. In that side position will be velocity time graph, we'll take it velocity time. So we are going to take the velocity time graph. Before starting its derivation, firstly we'll understand the graph. Let us assume that initial velocity of the object is u, means this portion is u. Object started its motion from this point and motion is uniform. After some time its velocity reaches to this point. ये देखो जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है. आफ्टर सम टाइम, जब कुछ टाइम स्पेंड हो गया, लेट अस से दिस इज टाइम, at that point its velocity reaches to this point which is called v. So this portion is called v, which is the final velocity. टाइम उसको कितना लगा, यहां से इस पॉइंट तक गया, ये उसको टाइम लगा. So we have to write down wording of it. Before writing the wording, we'll label this graph firstly. Let us say this is origin O, started A point, ending B point. Let us say the time is C point, and this final velocity is the D point. So I have given the name to this graph. We'll erase this V. Actually, this is the velocity axis. Now it is understandable. Now, if we have to find out uh, we have to find out the displacement. How we can find out? We can find out that area with the help of graph. We will get the answer. But now if we have to find out slope of this graph, so we'll start this graph. Firstly, the wording you will write down it. Let us assume that an object is moving with uniform velocity, with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन राइट कर सकते हो या फिर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो. लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u. इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, u. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, और यू कैन से इट्स velocity is v as shown in the figure, this figure.
तो यहाँ पे आपने देखा पहले इनिशियली u थी, आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी रीचेस टू v, हमने यहाँ पे v मेंशन कर दिया, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ what is the slope of this graph? Slope of graph will be y-axis divided by x-axis, or we can say simply, what is the acceleration? Acceleration is change in velocity divided by time. Now what is the change in velocity? यहां से लेके यहां तक है, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी हमको कैसे मिलेगा? कैन वी से दैट बी इनिशियली, चलो हम ग्राफ को डिवाइड कर लेते हैं यहां तक, लेट अस से दिस इज जी पॉइंट, तो चेंज कैसे मिलेगा? ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल है, इतनी तो थी उसके पास पहले, इसमें से टोटल में से इनिशियल वाली माइनस कर दें तो हमारे पास फाइनल वाली बच जाएगी। यू कैन सी देयर, ये टोटल है, टोटल में से इनिशियल वाली सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट दैट चेंज। तो वेलोसिटी चेंज कितनी, पहले इनिशियल u थी, मान लो अज्यूम करते हैं पहले 10 थी फिर 50 होगी, तो चेंज कितने का आया, कैसे फाइंड आउट करते हैं चेंज? 50 माइनस 10 दैट इज 40। चेंज कितने का आया? 40 का। यहां से यहां जाने तक कैसे निकाला? यहां से यहां तक 10 है, मींस दैट इज द 10, लेकिन यहां से यहां तक टोटल कितनी है? 50। तो यहां से यहां तक जाने में चेंज कितना आया? ये चेंज जो बच गया ये कितना बचा? 40। कैसे निकाला? माइनस करके। अब इसी चीज को मैथमेटिकली हम करेंगे, सॉरी ग्राफिकली देखते हैं, ये तो मैथमेटिकल वैल्यूज थी। कैन आई राइट इट? चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू बी सी माइनस बी जी, बी सी माइनस बी जी, मीन से ग्रीन वाला माइनस कर दिया। टाइम कितना लगा? ओ सी डिवाइडेड बाय ओ सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी? कैन आई से दैट बी सी इज इक्वल टू ओ डी, बी सी इक्वल टू ओ डी, एंड बी जी, बी से लेके जी तक ये हमें निकालनी है। सॉरी गलत लिख दिया हमने इसका। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना है? नाउ चेंज इन वेलोसिटी वो हमारे पास कितना है? बी जी, उसकी वैल्यू कितनी है? बी सी माइनस जी सी, बी सी माइनस जी सी, इतना सा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना था। तो कैन वी राइट इट लाइक बी जी इज इक्वल टू, बी जी इज इक्वल टू बी सी दैट इज इक्वल टू ओ डी माइनस जी सी दैट इज इक्वल टू ओ ए। यहाँ पे हम रीजन भी दे देंगे, बिकॉज BC is equal to OD and GC is equal to OA। साथ में रीजन भी दे दिया, which is equal to, इनकी वैल्यू फिल कर दो। O से D की वैल्यू कितनी है? O से लेके D तक वैल्यू है उसकी V, O से लेके A तक उसकी वैल्यू है U। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। Also OC is equal to T, तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस बन गए, हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, second and third in first, so we can say that acceleration is equal to bg, इसकी वैल्यू है हमारे पास bg, और टाइम है हमारे पास oc। तो bg की वैल्यू डायरेक्टली फिल कर दो। bg की वैल्यू क्या है? v माइनस u डिवाइड बाय टाइम t। तो
यहां से टाइम मल्टीप्लाई करो, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगी। V माइनस यू इज इक्वल टू AT, दैट इज इक्वल टू V माइनस यू इज इक्वल टू AT। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या किया जल्दी से देखते हैं। फर्स्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला राइट किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इतना सा पोर्शन इसका चेंज हो रहा है, ये वाला, दैट इज BG। सो वेलोसिटी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, BG डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, इस टाइम पीरियड में चेंज हुई, सो दैट इज OC। नाउ BG की वैल्यू फाइंड आउट की, कैसे की, BC माइनस GC, BC माइनस GC। BC किसके इक्वल है, O से लेके D तक। GC किसके इक्वल है, O से लेके A तक। वैल्यू फिल की, अब O से A की वैल्यू क्या है, U है, ये हम डेफिनेशन में कह चुके हैं। O से लेके D तक V है, ये भी हम डेफिनेशन में कह चुके हैं। टाइम कितना लगा, T लगा है। इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू यहाँ पे फिल की, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। So this is the graphical method to find out first equation of motion. अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे, इसी से कंटिन्यू करना है, वर्डिंग सारी की सारी सेम रहेगी। Now we will find out second equation of motion. Same graph, same wording. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो अभी हम यहाँ पे राइट करके छोड़ देंगे एक बार। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी V माइनस यू इज इक्वल टू A, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे अभी। नाउ सी देयर इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, या वी कैन से displacement is required. In the previous lecture we have studied that whenever we have to find out the displacement, we can find out area under the graph. Now we have this one area, so it is not any perfect shape, so we'll divide it into two parts. One rectangle is seen to me, one is that rectangle, and second one is the that triangle. So two diagrams are there. One is in the rectangle and second is the triangle. Triangle कौन सी है, AGB. Rectangle कौन सी है, AGCO. So all started again. Displacement that is denoted by S, that is equal to area under the graph. कहाँ से कहाँ तक, OABGC, OABGC, वापिस आ गया O तक। Now we'll break that area into two parts. That is area of A, start करते हैं, AOAGC, OAGC plus area of that triangle AGBA, area of AGBA। तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास, दो हो गए, और दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगाओ। इसमें एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या बनेगी, OA मल्टीप्लाई बाय OC, OA ब्रेड्थ इज OC। डायरेक्टली आ गई इस पर रेक्टेंगल का एरिया। मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा डार्क कर देता हूं, तो ये वाली रेक्टेंगल का एरिया आ गया हमारे पास, दैट इज लेंथ इनटू breadth. So length is OA, breadth is OC, plus area of triangle क्या होता है, half multiply by base. Its base is AG. So AG is the base of that triangle. Height is GB. So that is the height. Now put that values. OA की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ। OA की वैल्यू कितनी है, U. Very good. OC की वैल्यू कितनी है, T. वेरी गुड। हाँ, AG की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा, AG is equal to OC. So can I write it OC and GB should be written as it is. यहाँ पे रीजन दे देना, because
ए जी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या बन गया, u मल्टीप्लाई बाई टी प्लस आर। ओ सी की वैल्यू कितनी है, टी। ओ सी की वैल्यू कितनी है, टी। टाइम कितना लगा था, जी बी की वैल्यू हमने लास्ट में निकाली थी। जी बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, जी बी की वैल्यू कैन यू से दैट बी सी माइनस जी सी, बी सी माइनस जी सी। So ut plus half t, bc की वैल्यू, bc this is total that is equal to this one that is equal to b, मैं डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ। gc की वैल्यू this one that is equal to u, ut plus half t, v minus u की वैल्यू कितनी हमने फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव की थी, that is 80। यहाँ पे लिख सकते हो आप, because v minus u is equal to 80। क्या बन गया हमारे पास, ut प्लस हाफ t मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी क्या। तो जल्दी से देख लीजिए क्या किया इस डायग्राम में। Questioning simply we have to find out displacement. Whenever we have to find out displacement, area under the graph. Graph is divided into two portions. One is the area of rectangle, one is the area of triangle. After a little bit calculation, we'll get the second equation of motion. That is the very easiest part. Now we'll move to the third equation. ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट वी विल डू इन द सेकंड इक्वेशन, हम टाइम को एलिमिनेट कर दें तो हम थर्ड इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से टाइम को खत्म कर दें so we can reach to the third equation. How we can do in the third equation, we will start the same procedure। यहां तक हम सेम करेंगे, यहां तक हम सारा का सारा मोशन एज इट इज करते आएंगे। सेम स्टार्ट किया, सेम यहां तक आ गए, ut प्लस हाफ टी v माइनस u। नाउ वी विल फिल द वैल्यू ऑफ t देयर। इसी फॉर्मूले में से t की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगा, v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। तो वो वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, क्या बन गया, u मल्टीप्लाई v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ, कोई गलती कर दी, काफी गलती की है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, v माइनस u इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय a। v माइनस u कॉमन निकाल लो, ये सारे कॉमन निकाल लो, v माइनस u बाय a। अंदर क्या रह गया, यहाँ से u रह गया अकेला, प्लस हाफ v माइनस u बाय a तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, v माइनस u। बस अब यहाँ पे हमारा काम करना, सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 2u प्लस v माइनस u डिवाइड बाय 2। ये 2 एलसीएम ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे आके, v माइनस u अपॉन a, अंदर क्या रह गया 2u माइनस u। तो ये यहाँ पे पहले तो रह गया v, ये वाला v मैं पहले राइट कर रहा हूँ, 2u माइनस u दैट विल बी u डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला किया होगा a प्लस b a माइनस b मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे v माइनस u v प्लस u, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे करता हूं मैं, तो ये हमारे पास बनने वाला है s, यहाँ पे s चला आ रहा था, दैट इज इक्वल टू v माइनस u इंटू v प्लस u डिवाइड बाय क्या पड़ा, वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2a। तो a माइनस b a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एज इट इज पड़ा है, दैट इज इक्वल टू s। यहाँ पे आप लिख दोगे बिकॉज a माइनस b a प्लस b इज
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे। टू ए मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थी हमारी ग्राफिकल व्यू, डेरिवेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक सेकंड और थर्ड सेम आएगी। अगर तो आप v माइनस यू को एलिमिनेट करते तो सेकंड बन जाएगी। हमने क्या किया, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, फॉर्मूला भी वही यूज किया सेम। तो अगर टाइम को एलिमिनेट कर दिया, टाइम की वैल्यू निकाल के फिल कर दी, टाइम की वैल्यू फिल कर दी, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, एक वैल्यू ये आई, टाइम कॉमन आ गया बाहर, मीन्स ये वैल्यू कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा, यहाँ पे यू रह गया, यहाँ पे क्या रह गया था, हाफ वी माइनस यू, एलसीएम लिया, सब्ट्रैक्ट करके जो कि हमारे पास बनी वैल्यूज, and then we'll get the third equation of motion. So these are our topic, derivation of equation of motion. Motion chapter हमारा यहाँ पे खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, that is the circular motion. We'll do it in the next video. बहुत ही easy, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें अब पेपर में अगर आपको बोलना होगा ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, बस इतना है, तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। जो पिछले वाला था वो एनालिटिकल मेथड था, जो अब वाला है वो ग्राफिकल मेथड है। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, आप एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हो। अगर वो वहां पे स्पेसिफाई कर देता है कि ड्राइव इट विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, तो आपको सिर्फ वही मेथड यूज करना है। अगर आपको कहता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, देन यू हैव टू मेक द यूज ऑफ दैट मेथड। And I believe that graphical method is the more easiest as compared to the analytical. Today lecture will sum up there. Try your numerical, complete the chapter. If anyone have any doubt, you can send your doubt in the comment box. I'll give you the reply. And मिलते हैं next lecture में. Thank you.